So last Sunday, or Sunday before that, we began a study on the new covenant. पिछले रविवार हमने नई वाचा के ऊपर अध्ययन शुरू किया था. And since this church is called New Covenant Christian Fellowship, क्योंकि इस कलीसिया को नई वाचा का मसीही संघ कहा गया है, you should know exactly what it stands for. तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है. The Bible is divided into two parts, as you know, Old Testament and New Testament. बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम. And the word covenant and testament mean the same thing. और जो शब्द वाचा और नियम है, दोनों का ही मतलब एक ही है. Or more, a word that is used more frequently in today is agreement. और जो शब्द का इस्तेमाल आज अक्सर किया जाता है वो ये है समझौता. The old covenant is the old agreement that God made with Israel. पुरानी वाचा जो है एक पुराना समझौता है जो कि परमेश्वर ने इजराइल जन के साथ की थी. And there were certain conditions, and all those things were listed in the 10 commandments. वहाँ पे कुछ नियम वगैरह दिए गए थे, वो 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है. And in more than 600 other commandments that the Lord gave through Moses, और 600 से भी अधिक जो आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहाँ दिया, which are in the first 5 books of the Bible, जो कि बाइबल के पहले 5 पुस्तकों में देखा जाता है, Exodus onwards. निर्गमन से लेकर. But there was no knowledge of God as a father there. परंतु वहाँ पे परमेश्वर को पिता के रूप में स्वीकार करने की बात नहीं थी. There was no assurance that God won't remember our sins anymore. वहाँ पे कोई भी एक निश्चय नहीं दिया गया था कि परमेश्वर हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेंगे. There were many limitations in that old agreement. पुराने समझौते में बहुत सीमाएं थी. Then Jesus came फिर यीशु आए and made a new agreement. उन्होंने एक नया समझौता बनाया. So in Hebrews, it says in chapter 3, इब्रानियों उसके अध्याय 3 में कहा गया है that the old agreement was through Moses. कि पुरानी वाचा जो है वो मूसा के द्वारा था. Chapter 3 verse 5, Moses was faithful in his house as a servant. अध्याय 3 का 5वां वचन, मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा. And the new agreement is contrast Moses with Christ. और नई वाचा जो है मसीह के द्वारा, यहाँ पे हम देखते हैं मूसा की तुलना मसीह के साथ किया गया है. In verse 6. वाक्य 6. So one of the main differences is this. तो एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है, in the Old Testament, पुराने नियम में there was no victory over sin, as we mentioned last time. जैसे कि हमने पिछली बार कहा था, वहां पे पाप के ऊपर जय नहीं है. In the new agreement, sin cannot rule over you. पर नए समझौते में पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता. So from that we come to this conclusion. उसमें से हम इस निर्णय की ओर आते हैं कि I want to repeat what I said last time because this is one of the most important parts of the new covenant. मैंने जो पिछली बार कहा था उसे ही मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि नई वाचा का ये एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है. Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14 वचन. Let me repeat it. मैं उसको दोहराता हूँ. Even a child can answer this question. एक छोटा बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है. Sin will not be master over you because of one reason. पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा एक ही कारण की वजह से. You are not under the old covenant law. क्योंकि तुम पुराने वाचा के व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, but you are under the new covenant grace. परंतु तुम नई वाचा के अनुग्रह के अधीन हो. So the question is, अब प्रश्न ये है, if you are constantly defeated by sin, अगर आप हमेशा पाप से हारे हुए रहते हैं, whether you know it or not, आप जानो या ना जानो, you are living under the old covenant. आप पुरानी वाचा में ही जी रहे हैं. Under the agreement God made with Israel. वो समझौते के अधीन में जो कि परमेश्वर ने इजराइल जन के साथ की थी.
It's like I've heard here in the United States ये ऐसा ही है जैसे कि मैंने यहाँ पे अमेरिका में सुना था, around 1861 or 62 or somewhere, लगभग 1861 या 62 में, when the president proclaimed liberty for all the slaves. जब यहाँ के राष्ट्रपति ने सारे जितने भी गुलाम हैं उनकी स्वतंत्रता की घोषणा की थी In the southern part of the United States, अमेरिका के दक्षिणी भाग के लिए, it was proclaimed on a certain date. कुछ निश्चित तारीख को उसकी घोषणा की गई थी। But the people down there in the south, there was no television, or those slaves did not read newspapers. और जो दक्षिणी भाग में जो लोग रहते थे वहां पे उस समय टीवी नहीं था और वहाँ जो गुलाम रहते थे वो अखबार नहीं पढ़ते थे। They never knew. वो उन्होंने कभी जाना ही नहीं इस बात को, And for years and years and years, they remained slaves. और बहुत सारे वर्षों तक वो गुलाम ही बने रहे। This freedom from slavery had been proclaimed गुलामी से जो स्वतंत्रता है उसकी घोषणा हो चुकी थी in the capital, but राजधानी में, they never heard about it. पर उन लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं था, And so they remained slaves for years, इसलिए वो गुलामी की अवस्था में बहुत वर्षों तक रहे, for many, many years. बहुत सारे वर्षों तक। Now, the devil does not want us to know अब शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि हम ये जानें that on the cross of Calvary कि कलवरी की उस क्रूस पे and through the gift of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा God has made provision for you to be free from every known sin in your life. कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध बनाया है कि आपके जीवन से हर एक जाने हुए पापों से आप स्वतंत्र हो सकते हैं। But do you think the devil wants you to know it? No. पर क्या आपको ऐसा लगता है कि शैतान चाहता है कि हम इस बात को जाने? नहीं, He'll keep you ignorant of it. वो आपको इस बात से अनजान ही रखेगा। And even if you hear it in a meeting like this, यद्यपि आप ऐसी एक सभा में इसके बारे में सुनो भी, he will not permit you to experience it in your life, because आपके जीवन में इसका अनुभव करने का जो अनुमति है वो नहीं देगा, somehow or the other he will explain it away for you and saying, और वो किसी न किसी तरीके से आपको ऐसे बताएगा इसे, well, you actually got it, or when you haven't got it. वो कहेगा कि तुमने तो इसे पहले ही पा लिया है जबकि तुमने इसे पाया ही नहीं हो। So it's very important for us to understand. तो इसके बारे में समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So let's begin with our past life. I want to make it very simple. हम इसकी शुरुआत करते हैं हम अपने अतीत के जीवन से। मैं इसे बहुत ही सरल बनाना चाहता हूँ। What is God's provision परमेश्वर का प्रबंध क्या है for our past life? हमारे अतीत के जीवन के लिए? You turn with me to Hebrews in chapter 8, where he specifically speaks about the new covenant. मेरे साथ चलिए इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय में, जहाँ पे नए वाचा के विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। Hebrews in chapter 8. इब्रानियों 8वां अध्याय। In the earlier chapters, he says, इसके पहले के अध्याय में वो कहते हैं, in the old covenant, there's a constant remembrance of sin, पुरानी वाचा में हमेशा पाप के विषय में याद दिलाया जाता था, because they're always offering. Every year they had to come and bring an offering. क्योंकि हर साल वो चढ़ावा लेके आया करते थे, उनको करना पड़ता था वो। And there's a remembrance. You're a sinner. You're a sinner. You're sinning. You're sinning. You're sinning. और वहां पे एक स्मरण दिलाने की बात होती थी कि तुम एक पापी हो, तुमने पाप किया है, तुम एक पापी हो, तुमने पाप किया है। But in the new covenant, परंतु नई वाचा में, see, it says here in verse 8, Hebrews 8 verse 8, यहाँ पे कहा गया है, देखिए इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 8वां वचन, behold, the days are coming when I'll effect a new covenant with the house of Israel and Judah. देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। That house of Israel and Judah today is the church. और ये जो इजराइल का घराना और यहूदा का घराना जो है वो आज की कलीसिया है। And what is the new covenant? और ये नई वाचा क्या है? And if you read in the succeeding verses 9 onwards to 12, जब आप उसके आगे के वचनों को पढ़ेंगे जो कि 9 से लेके 12 वचन तक है, there are basically 3 things mentioned there. वहां पे बुनियादी रूप से 3 चीजें दिखाई गई है। And verse 13, और वाक्य 13,
when he says a new covenant, the first is made obsolete. जब वो कहते हैं नई वाचा तो इसका मतलब है कि पुरानी जो वाचा है वो मिटाया जा चुका है। So the old covenant is not existing today. तो पुरानी वाचा अब स्थायी रूप से नहीं है। As far as God is concerned, he wants every single Christian जहां तक परमेश्वर की बात आती है वो चाहते हैं कि हर एक मसीही to live under the new covenant, which means he wants every single Christian to be under grace, not under law. तो वो चाहते हैं कि हर एक जन नई वाचा के अधीन में रहो। इसका मतलब ये है कि हर एक मसीही जो है अनुग्रह के अधीन में रहे, ना कि व्यवस्था के। And he wants every single Christian to experience sin will not rule over you. और प्रभु चाहते हैं कि हर एक मसीही जो है इस बात का अनुभव करे कि पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं करता। In your thoughts, आपके विचारों में, in your words, आपके शब्दों में, in your deeds, आपके कामों में, in your attitudes to people, लोगों के प्रति आपके मनोभाव में, and even in your motives. यहाँ तक कि उद्देश्यों में। Thought, word, deed, attitude, motive. विचार, शब्द, काम, मनोभाव और उद्देश्य, These are the areas where sin is. ये जो क्षेत्र है जहाँ पे पाप होते हैं। And in all those areas, God wants us to be free. परमेश्वर चाहते हैं कि इन सारे क्षेत्रों में हम स्वतंत्र हो जाएं। Now, if you see what God has provided for you, जब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या दिया है, then we can go and say, Lord, how can I get it? फिर आप प्रभु के पास जा सकते हो और कह सकते हैं कि प्रभु मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। So the first thing God wants to do with us is blot out the past. सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहते हैं वो ये है कि हमारे अतीत को मिटाया जाए। Because many of us can be harassed by the memory of our past failures. वो क्योंकि हो सकता है हमें से अधिक लोग जो है अपने अतीत में हुई असफलताओं के लिए परेशान किए जा रहे हों।